This is oxidation of aldehydes and ketones. I've written Tollens test, Fehling's test, and iodoform test. There is no exam in which you will not get a question on these tests. You will be given a question, even in your board exams. Oxidation of aldehyde and ketone क्यों लिखा मैंने? Aldehydes and ketones, the way they get oxidized is not the same. कैसे? Aldehydes and ketones, out of aldehydes and ketones, aldehydes can be oxidized by strong oxidizing agents as well as weak oxidizing agents. Ketones weak के साथ काम नहीं करते. If ketones have to be oxidized, then we have to use a very, very strong oxidizing agent like alkaline KMNO4, potassium permanganate लेते हैं, potassium dichromate. Potassium permanganate is a very, very strong oxidizing agent. So only that works with ketones. और वो भी क्या करता है? Bond तोड़ देता है. लेकिन aldehydes, they can even work with weaker oxidizing agents. तो ये जो है ना Tollens reagent, Fehling's reagent और iodoform reagent, ये तीनों actually are oxidizing agents and they are weak oxidizing agents. Since they are weak oxidizing agents, aldehydes इनके साथ कोई colored precipitate देते हैं, ketones नहीं देते. So do you understand the logic? कि ketones इनके साथ, इसका मतलब कभी भी any question, give a chemical test to distinguish between ethanol and say propanol. तो सबसे पहले एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन. वेरी सिंपल. इन तीनों में से कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है. आयोडोफॉर्म के लिए कुछ वी नीड समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक. इसको हम अलग से पढ़ेंगे, राइट. सो टॉलेंस, फेलिंग्स कुछ भी ले लो. एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, क्योंकि आयोडोफॉर्म इज गिवन बाय कीटोन्स, बट वो भी एक पर्टिकुलर टाइप के कीटोन्स, ठीक है. तो टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट, दे कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन, ठीक है. ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको नहीं करेंगे. और एल्डिहाइड कभी भी अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? एसिड. मैंने ये बहुत बार करवाया. अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद वीक changes to aldehyde, which on oxidation with weak gives acid. और अल्कोहल स्ट्रॉन्ग के साथ कर दूं तो सीधा एसिड बनाएगा, यहाँ रुकेगी नहीं ट्रेन. और रिड्यूसिंग उल्टा, रिडक्शन में एसिड को वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो यहाँ तक स्टॉप कर जाएगा. और अगर स्ट्रॉन्ग के साथ करोगे आप, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो इट विल कन्वर्ट टू अल्कोहल. और एल्डिहाइड को तो अगर आप माइल्ड के साथ भी कर लोगे तो इट विल गिव यू अल्कोहल. सो यू शुड रिमेंबर दिस, right? So this is the logic why we use these tests to for distinguishing. Now how do we do tolerance test? होता क्या है इसमें? Tolerance test, as I just discussed, it is given by aldehydes but not by ketones. So this can be used to distinguish between an aldehyde and a ketone. ठीक है. Tolerance reagent होता क्या है? We take the aldehyde solution, treat it with ammoniacal silver nitrate. Ammoniacal is ammonium hydroxide. Silver nitrate is AgNO3. दोनों को convert करो, मिलता क्या है? AgNH3 whole twice plus. This reagent is formed in the presence of basic medium. Sodium hydroxide डालते हैं. We need little alkaline medium for this. इसलिए base डाला. करना क्या होता है? We have to warm it. वाटर बाथ में करते हैं. We have done tolerance test in the for identification of functional groups. उसमें हमने लैब में किया था. अगर आप यहाँ हीट नहीं लिखते हो, अगर आप उस रिएजेंट को, आपने एल्डिहाइड सोल्यूशन लिया, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट डाला, बेस डाला, till the time you heat it you will not get the precipitate. होता क्या है इसमें? बनता क्या है? Aldehyde, I told you, ammoniacal silver nitrate Tollens reagent is a weak oxidizing agent, so it will oxidize aldehyde to ketone. ये मैंने aldehyde to carboxylic acid, लेकिन मैंने ये CO माइनस पे छोड़ दिया. I did not write RCOOH, क्योंकि कभी भी अगर हम बेस लेते हैं तो RCOOH नहीं बनता, RCOONL बनता है.
अगर यहाँ पे मैं KOH लूँ तो ये RCOOK बनेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमने यहाँ Na या K नहीं लिखा, सो वी आर लीविंग इट एट एज RCOO माइनस। नाउ टेस्ट क्या है? I took this solution, I added ammoniacal silver nitrate, I added base, पर दिखेगा क्या, ऑब्जर्व क्या होगा? I'll get this, बट ये तो कलरलेस है, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। I can't assume कि क्या चीज़ है, बट I get silver mirror on the walls of the test tube. I get this प्लस, अब देखो इसके प्रोडक्ट्स याद करने चाहिए, चारों प्रोडक्ट्स, देयर आर 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म, इन चारों कैसे के याद करेंगे? RCHO, Tollens test is an oxidation reaction. So aldehyde gets oxidized to carboxylic acid salt. Ag का silver mirror आ गया वॉल पे. NH3 gas as it is released. बाकी क्या बच गया? OH minus. So that changes to water. Very simple. 1, 2, 3, 4. There are 4 reagents and चारों की 4 products. So aldehyde gives you salt of acid, Ag silver mirror on the walls of the test tube, NH3 as NH3 and OH minus से water बनता है. So we get silver mirror on the walls of the test tube. Shiny सा बनता है, right? And this is the Tollens reagent, Tollens test. Tollens test की एक exception है. There is one exception. Although I was writing, I just explained that aldehydes give this test. एक exception है, formic acid is the only acid which also gives Tollens test positive. मतलब अगर मैं आपको 2 carboxylic acids दे दूँ, please differentiate formic acid and acetic acid या ethanoic acid. अब दोनों acid है, सोडियम मेटल डालोगे तो गैस बनेगी, सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे, सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो CO2 बनेगा। तो ये दोनों सेम टेस्ट देंगे। सो इन दैट केस फॉर्मिक एसिड के लिए टॉलेंस टेस्ट, इट यहाँ इसकी जगह विल राइट HCOOH एंड इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर इट विल गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। तो कभी भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से अगर एक ये है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी यूज टॉलेंस टेस्ट। नेक्स्ट इज फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट, सबसे पहले फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है, हाउ डू वी मेक इट, व्हाट डू वी गेट, और दूसरी चीज़ कौन ये टेस्ट देगा पॉजिटिव और कौन नहीं देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फेलिंग्स टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स। मैंने कहा था अगेन इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज़ गिवन पॉजिटिव बाय एल्डिहाइड्स एंड नॉट बाय कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम फेलिंग्स टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इट इज गिवन बाय एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ओनली, नॉट बाय एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं देते, मतलब बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, बट CH3CHO एलिफैटिक है, ओपन चेन है, ये देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे डू नॉट गिव, सो कीटोन्स डोंट गिव एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे डोंट गिव फेलिंग्स टेस्ट। अब है क्या? फेलिंग्स रिएजेंट इज we combine or we mix equal amount of pheling A and pheling B, 1:1 ratio. जितना ये उतना ये, 5 ड्रॉप्स ये लोगे तो 5 ड्रॉप्स ये ऐड करके तो हम फेलिंग्स रिएजेंट बनाते हैं। एल्डिहाइड वाला सोल्यूशन लिया, एलिफैटिक एल्डिहाइड, वी ऐड फेलिंग्स, the mixture of pheling A and B in the ratio 1:1 and again we heat it in water bath. Again it has to be warmed. Pheling A क्या है? It is aqueous copper sulfate solution. पानी में कॉपर सल्फेट मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया, दैट्स फेलिंग ए। फेलिंग बी इज, दीज 3 आर एक्चुअली वन कॉमन नेम, वन सिंगल नेम। इट इज फेलिंग बी इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये रिएजेंट्स के नाम याद होने चाहिए, प्रैक्टिकल्स के लिए भी और थ्योरी के लिए भी। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इज ऑल्सो नोन एज रोशेल सॉल्ट, ठीक है। अब हम करते क्या है, हम इन दोनों को जब मिक्स करते हैं, हमने लिया एल्डिहाइड, व्हेन वी मिक्स दीज फेलिंग ए एंड बी इन द रेशियो 1:1 इक्वल रेशियो में जब हम ऐड करते हैं, वी एक्चुअली गेट कॉपर आइंस, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, वी गेट दिस। और हमने इसमें क्या, अगेन बेसिक मीडियम NaOH,
It has to be done in alkaline medium. So when we heat, again water bath, direct heating कभी नहीं करते, water bath में heat करते. When we do this, aldehyde, अब again जैसे टॉलेंस में था 4 reagents 4 products, यहाँ पे 3 reagents 3 products will be formed. It's an oxidizing agent, oxidizes again because OH minus base है तो RCO minus बनेगा plus Cu2O, cuprous oxide का reddish brown PPT, और OH minus है तो water बनेगा ही बनेगा. So these are the three products formed. ठीक है? So this is known as Felling's test.